میں کل سے یہ سرمن سوچ رہی تھی کہ اس کا میں ٹائٹل کیا لکھوں گی، اسی لیے میں نے بورڈ نہیں لکھا کیونکہ میں ٹائٹل نہیں ڈیسائیڈ کر پائی تھی. لیکن ابھی جب دعا ہو رہی تھی آئی گاٹ دا ٹائٹل آف دا سرمن کہ مسیح یسوع تک رسائی کا واحد نقشہ جو ہے وہ خدا کا زندہ کلام ہے. مسیح یسوع تک رسائی کے لیے جو نقشہ ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. سو ہم اسی کے متعلق آپ سیکھیں گے کہ کلام مقدس کس طرح سے ہمیں مسیح یسوع تک پہنچاتا ہے. اب جو اقتباس پڑھا گیا، جو واقعہ آج پڑھا گیا ہے، ابھی لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب 13ویں سے 35ویں آیت تک. اب اس اقتباس میں اس واقعے میں دو اشخاص کا ذکر ہے. ایک کا نام بتایا گیا ہے، اس کا نام کلیوپاس ہے، اور دوسرے کا نام نہیں مینشن ہے. اب یہ دو لوگ ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ دونوں بہت فکر مند ہیں. یہ دونوں مایوسی کا شکار ہیں، شکستہ دلی کا شکار ہیں، ڈسکریجمنٹ کا شکار ہیں. اور لکھا ہے کہ یہ یروشلم سے ایماؤس کی جانب جا رہے ہیں. یہ دونوں پریشانی کی حالت میں ہیں، یہ دونوں فکر مندی کی حالت میں ہیں، یہ دونوں مایوسی کی حالت میں ہیں، یہ دونوں نا امیدی کی حالت میں ہیں. اور ان کی ساری جو سچویشن ہے، نا امیدی، شکستہ دلی اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی جو ان کی وجہ ہے وہ ایک ہی تھی، اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، وہ ان کی غلط فہمی تھی، ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. ان کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی زندگی میں مایوسی ہے، اور اس مایوسی نے ان کی زندگی میں شک پیدا کیا، اور اس شک کے باعث ان کی زندگی میں ڈسکریجمنٹ، حوصلہ شکنی پیدا ہوئی. یہ ڈسکریج تھے. اب سوال ہے کہ ان کی ڈسکریجمنٹ کی وجہ اگر ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، ان کی غلط فہمی تھی، تو وہ غلط فہمی کیا تھی؟ تو جب ہم کلام مقدس میں سے 21ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اب یہ دونوں بڑے پریشان ہیں اور ایماؤس کی جانب چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مسیح یسوع خود ان کے نزدیک آتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور مسیح یسوع سے پوچھتے ہیں، آپ لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اور وہ دونوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے بندہ مایوسی کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، دکھ کی حالت میں. اور وہ مسیح یسوع سے کلیوپاس کہتا ہے کہ کیا یروشلم میں واحد تو ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں میں کیا ہوا؟ یعنی مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا، اسے مار دیا گیا، اسے قبر میں رکھا گیا. مسیح یسوع نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ ابھی وہ مسیح یسوع کو پہچان نہیں پا رہے. کلام مقدس بتاتا ہے کہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی تاکہ وہ مسیح یسوع کو نہ پہچانے. اب وہ مسیح یسوع سے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، اور اسی دوران یہ بھی کہتے ہیں، ہمیں امید تھی کہ یہی یسوع بنی اسرائیل قوم کو رومی حکومت سے آزادی دلائے گا، مخلصی دلائے گا. یہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی، کیونکہ یہ بہت سے یہودیوں کی طرح مسیح یسوع کو ایک سیاسی مسیحا سمجھ رہے تھے. یہ سوچ رہے تھے کہ مسیح یسوع اب بہت جلد اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے معجزات کا استعمال کرے گا، رومی حکومت کو گرا دے گا اور اپنی بادشاہت قائم کرے گا. بہت سے یہودی ایسا سوچتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہودا اسکریوتی، آپ جانتے ہیں مسیح یسوع کو پکڑوانے میں اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا، اتنا پورا اعتماد کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں مسیح یسوع کو بیچ بھی دوں گا، پھر بھی مسیح یسوع اپنے آپ کو چھڑا لے گا اور اپنی بادشاہت قائم کر لے گا. کیونکہ وہ سمجھتا تھا مسیح یسوع قادر مطلق ہے اور یہ اپنی بادشاہت قائم کرنے آیا ہے. یہی غلط فہمی ان یہودیوں کی کو تھی، اور یہی غلط فہمی ان دو اشخاص کو تھی جو اس وقت مایوسی کا شکار تھے. وہ یسوع جس کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ بہت جلد اس کے ہاتھ میں شاہی ایسا ہوگا، اس یسوع کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے. جس یسوع کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے کہ یہ اپنا تاج پہننے والا ہے، اس یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. جس یسوع کے بارے میں یہ دو اشخاص اور بہت سے شاگرد اور یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ یسوع بہت جلد اپنا شاہی لباس پہننے والا ہے، اس کے لباس پر کرہ ڈالا گیا. اور جس یسوع کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ اس یسوع کو بہت جلد تخت پر بٹھایا جائے گا، اس کو مصلوب کر دیا گیا. اور جس یسوع کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اپنی بادشاہت سنبھالنے والا ہے، وہ یسوع قبر میں تھا. ان کے لیے اس سے بڑی مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ مسیح یسوع جو ہے وہ ایک سیاسی مسیحا ہے، وہ سیاست کرے گا، بادشاہت قائم کرے گا، اور ہم رومی حکومت سے آزاد ہو جائے گا. اور جب ایسا نہیں ہوا تو وہ مایوسی کا شکار ہوئے.
खुदावन के अजीम खादम पॉल हार्वे कहते हैं, वो लोग अभी ये नहीं जानते थे कि मसीह यीशु कलवरी को ईस्टर में बदलने वाला है। हम बहुत से ईमानदार यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है हमारी जिंदगी में भी ऐसी कुछ गलत फहमियां हों खुदा को लेकर, मसीह यीशु को लेकर। हमारी तवक्कुआत जो होती हैं जब वो पूरी नहीं होती तो शायद हम भी मसीह यीशु की जात पर, उसकी कुदरत पर शक करने लगते हैं। हम डिस्करेज हो जाते हैं, हम वफादारी से हट जाते हैं, हम खुदा की फरमाबरदारी से कदम पीछे उठा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि चीजें उस तरह से नहीं हो रही जैसी मैंने सोची थी या जैसी मैंने तवक्को की थी। अब उनकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो वो नहायत मायूसी का शिकार हुए, वो परेशानी का शिकार हुए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं, मसीह यीशु की कुदरत को जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मसीह यीशु हमारे आंसुओं को हमारी मुस्कुराहट में तब्दील करने की कुदरत रखता है। हमारा यीशु हमारी आहों को, हालेलुया, हमारा यीशु हमारी आहों को हमारे नारों में तब्दील करने की कुदरत रखता है। हमारा यीशु कलवरी को ईस्टर में तब्दील करने की कुदरत रखता है। अब वो दोनों शागिर्द मसीह यीशु के शागिर्द ही थे, सहीफों को जानते थे, कलाम मुकद्दस से वाकिफ थे, लेकिन इस खास लम्हे में जब मसीह यीशु मसलूब हुए और मर गए और उनको दफन किया गया तो वो मायूसी का शिकार हुए, क्योंकि वो भी आधी कहानी से वाकिफ थे, वो पूरी कहानी से वाकिफ नहीं थे, सहाइफ के पूरे मतलब से वो वाकिफ नहीं थे। वो कहानी जो जानते थे वो कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो अभी इस बात पर सोच रहे थे कि अब मसीह यीशु मर गया है, अब ये अपनी बादशाहत कैसे कायम करेगा, अब ये चीजों को क्यों कर मुमकिन करेगा। इसीलिए 25वें आयत में मसीह यीशु ने उनको नादान कहा। मसीह यीशु ने कहा, ऐ नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो। मसीह यीशु ने इंग्लिश में लिखा है, यू फूल्स, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों ने सहीफों को सही से समझा नहीं, जाना नहीं। मसीह यीशु उनसे ये बात करता है और उन्हें समझाता है। मसीह यीशु ने इस बात के लिए क्लियर करता है। और याद रखें, हम जब मसीह यीशु में होते हैं, हम जब मसीहियत में आते हैं, जब मसीह यीशु की पैरोकार होने का तहैया करते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे हालात होते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उस वक्त भी कलाम अक़दस पर तकिया करें, हम उस वक्त भी कलाम मुकद्दस पर भरोसा करें, हम अपनी तवक्कुआत पर भरोसा ना करें। बहुत से मसीही, मैंने कहा, खुदा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं जब उनकी तवक्कुआत के मुताबिक चीजें नहीं होती। अब इस मायूसी की हालत में, इस परेशानी की हालत में, इस नाउमीदी की हालत में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जब वो दोनों बड़े परेशान थे, एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे हैं, तो मसीह यीशु आप उनके नजदीक आता है और उनके साथ हो लेता है। और ये बात हमें इस बात का इतलाक देती है, हमारी जिंदगी में कितनी भी मायूसी क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, चीजें हमारी तवक्कुआत के कितने ही मुखालिफ क्यों ना चली जाएं, मसीह यीशु आप हमारे नजदीक आता है और हमारे साथ हो लेता है। वो हमें इस हाल में अकेला नहीं छोड़ता है। अब मसीह यीशु आप आए हैं, मसीह यीशु ने खुद उनको अप्रोच किया है। जीसस क्राइस्ट सॉट देम, यीशु उनके खुद पास आया और उनके साथ हो लिया और उनसे पूछा कि ये जो आप बातचीत कर रहे हैं ये सब क्या है, आप किसके बारे में। मसीह यीशु चाहता था कि वो अपने दिल के गम को खोलें, वो अपने दिल की तकलीफ को मेरे साथ खोलें और फिर मैं इनके साथ कम्युनिकेट करूं। मसीह यीशु खुद उनके पास आया। और मैं समझती हूँ मसीह यीशु सिर्फ इन दो शागिर्दों के पास नहीं आया, मसीह यीशु हम में से हर एक के पास आया। मसीह यीशु ने हम में से हर एक को तलाश किया, मसीह यीशु ने हम में से हर एक को अप्रोच किया है, हम तक रसाई की है ताकि हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सके। मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं, हम इसलिए खुदा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। हम क्यों मसीह यीशु की पैरवी करते हैं? क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत का इजहार किया। मुकद्दस पौलुस कहते हैं, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हम अभी रास्तबाज नहीं हुए थे, हमने रास्तबाजी को नहीं पहना था, उस वक्त भी मसीह यीशु ने हमारे लिए जान का, अपने खून का कफारा दिया।
मसीह यीशु ने खुद उनको अप्रोच किया और उनके साथ बातचीत की। इसलिए नहीं कि उन्हें कंडेम करे, इसलिए नहीं कि उन्हें तनकीद करे, इसलिए नहीं कि उन्हें कहे कि आप लोग तो बड़े गलत हैं, बल्कि मसीह यीशु उनके दिल को कंफर्ट करना चाहते थे। मसीह यीशु उनको इस मायूसी में तसल्ली देना चाहते थे, उन्हें सिखाना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे। और मसीह यीशु इसलिए उन तक रसाई करते हुए उनके पास आए। याद रखिएगा, वो मसीह यीशु के शागिर्दों में से थे, वो उन लोगों में से थे जो मसीह यीशु के पैरोकार थे, वो मसीह यीशु के साथ रहते थे। लेकिन इस खास लम्हे में जब मसीह यीशु की मसलूबियत को देखा, मसीह यीशु के दुखों को देखा, मसीह यीशु की मौत को देखा, तो वो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त हो गए, वो परेशान हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि मसीह ने उनको अकेला छोड़ दिया। आज जब हम मसीह यीशु में होते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं, हो सकता है हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात आए जब हम बर्दाश्त हो जाए, जब हम दिल जो हमारा शिकस्ता दिली का एहसास हमारी जिंदगी में पैदा हो जाए। उस वक्त भी मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए नहीं कि हम मसीह के साथ वफादार हैं, इसलिए नहीं कि हम उसके बड़े फरमाबरदार हैं, बल्कि उसने हमें हमेशा के लिए ना अकेला छोड़ने का अहद कर रखा है। वो अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसने हमसे अहद किया, उसका वादा है कि मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। अब मसीह यीशु उन दोनों शागिर्दों के पास आता है और उनको खुद अप्रोच करता है उस मायूसी की हालत में। और जब मसीह यीशु उनको अप्रोच करते हैं तो सिर्फ वहीं तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि मसीह यीशु उनको सिखाना शुरू करते हैं, मसीह यीशु उनको समझाना शुरू करते हैं और कलाम मुकद्दस की बातें उनके साथ करना शुरू करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मसीह यीशु ने जब बात का आगाज किया तो मसीह यीशु ने कलाम मुकद्दस का इस्तेमाल किया, सहाइफ का इस्तेमाल किया, नविश्तों का इस्तेमाल किया, और फिर लिखा है कि उनकी आंखें खुल गई। अभी वो मसीह, अब देखिए, जब मसीह यीशु उनके पास आया, 15वीं और 16वीं आयत को अगर मेरे साथ पढ़े तो लिखा है, जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाना। मसीह यीशु ने जो अपनी बात का, अपनी कम्युनिकेशन का आगाज किया है, वो किससे शुरू किया है? कलाम मुकद्दस से। उसके बाद उनकी आंखें खुली हैं। और याद रखिएगा, ईमानदार के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, कलाम मुकद्दस का होना भी जरूरी है और आंखों का खुलना भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है जो देख सकता है, आप उसके इर्द गिर्द सारी तारीकी कर दें, अंधेरा कर दें, जरा भर भी रोशनी ना हो, तो क्या वो देख सकेगा? वो नहीं देख सकेगा। लेकिन अगर कोई शख्स उसके इर्द गिर्द आप बहुत सारी रोशनी कर दें, बड़ी बड़ी लाइट्स ऑन कर दें, लेकिन अगर वो नाबीना है तो क्या वो देख सकेगा? तब भी नहीं देख सकेगा। उसके लिए रोशनी भी जरूरी है और बिनाई होना भी जरूरी है। आप मसीह यीशु में, वो मसीह यीशु को पहचान तो नहीं पा रहे, लेकिन कलाम मुकद्दस से मसीह यीशु ने अपनी बात का आगाज किया है, सहाइफ से मसीह यीशु ने बात का आगाज किया है, नविश्तों का इस्तेमाल करते हुए मसीह यीशु ने बात का आगाज किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खुदा ने ऐसे हालात क्यों पैदा किए? खुदा ने ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा की कि वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे? खुदा क्यों चाहता था कि वो मसीह यीशु को ना जान पाए उस खास लम्हे में जब मसीह यीशु उनसे बात कर रहे हैं? ये बड़ी टेक्निकल बात है, स्कॉलर्स के मुताबिक गौर से सुनिएगा, ये मेरी और आपकी भी जरूरत है और उस वक्त उन शागिर्दों की भी जरूरत है। अब मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे थे, अब असेंशन होना था, मसीह यीशु ने साउथ फरमाना था, आसमान पर चले जाना था। अब जिस्मानी तौर पर मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के पास नहीं होना था। अब अगर उनके पास कुछ होना था तो वो कलाम मुकद्दस होना था। अब यीशु मसीह क्या चाहते हैं? खुदा क्या चाहता है कि वो मसीह यीशु को जिस्मानी तौर पर अपने साथ महसूस किए बगैर मसीह यीशु पर ईमान रखें और इस ईमान में कायम रहने के लिए कलाम मुकद्दस पर भरोसा करना सीखें। मैं और आप आज भी हम मसीह यीशु पर कैसे भरोसा करते हैं? मुझे कैसे पता मसीह यीशु कामिल इंसान था? क्योंकि उसका कलाम फरमाता है। मुझे कैसे पता कि मेरा यीशु जिंदा है? क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है। खुदावंद के एक अजीम थियोलॉजियन थे, उनसे पूछा गया कि आप अपनी सारी खिदमत का निचोड़ क्या बताना चाहते हैं? वो बहुत नाइस थियोलॉजियन थे और उन्होंने मुस्कुराया। और इंग्लिश का गीत है बच्चों का, हम संडे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने वो गीत गाया, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. मुझे कैसे पता कि यीशु मुझसे मोहब्बत करता है? Because Bible tells me so. आज भी ईमानदारों की जिंदगी में मसीह यीशु एक जिंदा हकीकत है। कैसे? कलाम मुकद्दस की मदद से। रूहुल कुद्स भी हमें कब रहनुमाई देता है? जब कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में
موجود ہوتا ہے. اور مسیح یسوع نے کلام مقدس کا استعمال کیا, کلام مقدس میں سے صحائف کا استعمال کرتے ہوئے ان کو سکھانا شروع کیا. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب مسیح یسوع ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا, مسیح یسوع نے روٹی توڑی اور ان کو دی تو ان کی آنکھیں کھل گئی. لیکن میں یہ آیت پڑھنا چاہوں گی, آپ غور سے سنیں گا, ان کی ایکسائٹمنٹ وہ کس بات کے لیے جوش سے بھر گئے. میں 31ویں آیت سے پڑھوں گی. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. اب انہوں نے مسیح یسوع کو کیا کیا؟ پہچان لیا ہے, اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یسوع کو دیکھ کر ہم کتنے جوش میں آ گئے ہیں. وہ ایک دوسرے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یسوع مسیح کلام مقدس ہمیں بیان کر رہا تھا, جب وہ نوشتیں ہمیں بیان کر رہا تھا, کیا ہم دونوں اس وقت جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ کیونکہ یہی کلام زندہ کلام ہے جو مسیح یسوع کو ہماری زندگیوں میں ایک زندہ حقیقت بناتا ہے. ہاللیلویا. مسیح یسوع نے جب ان کے ساتھ بات چیت شروع کی, وہ مسیح یسوع کو نہیں پہچانتے تھے, لیکن کلام مقدس تھا جس نے ان کو مسیح یسوع کی پہچان کروائی کہ ہاں, وہ جو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مسیح یسوع جی اٹھا ہے, وہ واقعی جی اٹھا ہے. اب وہ جان گئے تھے کہ اب وہ جی اٹھا ہے تو اب وہ اپنی بادشاہت قائم کرے گا. اب مسیح یسوع نے ان کو کلام مقدس میں سے سکھانا شروع کیا, اور کتنی دلچسپ بات ہے. ہاللیلویا. آپ دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے کہ یہ کلام مقدس ہے جنہوں نے ان کے دلوں کو جوش سے بھر دیا. آپ کو پتہ ہے آج بھی جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں, اس کی اچھی تفاسیر کو سنتے ہیں, تو ہمارے دل آج بھی جوش سے بھر جاتے ہیں. آج بھی ہم اپنے اندر طاقت اور انرجی کو محسوس کرتے ہیں, کیونکہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے. مسیح یسوع کا پیٹرن دیکھیں, مسیح یسوع کو کس طرح سمجھاتے ہیں. لکھا ہے 25ویں آیت سے پڑھیے گا. اس نے ان سے کہا, اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں, کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی. یہاں پہ آپ دیکھیے گا, لوکا طبیب نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے موسیٰ سے شروع کیا اور تمام نبیوں کے صحائف ان کو سمجھا دیے. موسیٰ سے شروع کیا اور کہاں تک گیا؟ نبیوں کے تمام صحائف تک. وہ ان کو مسیح یسوع کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیتا ہے. فرام دا اسٹارٹ پیدائش کی کتاب سے اس نے شروع کیا ہوگا یقیناً, اور مسیح یسوع کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں, ساری باتیں بتانا شروع کرتے ہیں. اور پھر لوکا طبیب لکھتے ہیں سب نوشتوں میں. ایسا نہیں کہا کہ کچھ نوشتوں میں, ایسا نہیں کہا یا چند نوشتوں میں. لوکا طبیب لکھتے ہیں کہ سب نوشتوں میں جہاں جہاں مسیح یسوع کا ذکر ہے ان کو کیا کیا؟ سمجھا دیا. تو یہ لفظ لکھنا سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کلام مقدس میں جتنے نوشتے ہیں وہ مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں, وہ مسیح یسوع کا بیان کرتے ہیں. گراہم اسٹروگی خداوند کے عظیم خادم کہتے ہیں, کٹ دا بائبل اینی ویئر اٹ بلیوز. آپ کلام مقدس کو, بائبل کو کہیں سے بھی پڑھیں, وہ یسوع کے لہو کی شہادت دے گی, وہ یسوع کے لہو کی گواہی دے گی, وہ یسوع کے لہو کو بیان کرے گی. اور مسیح یسوع نے جب ان کو یہ سب بیان کرنا شروع کیا, اوبیسلی اس وقت جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے, ایسٹر کا دن تھا, ابھی نیا عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا, تو پھر کس کی بات ہوئی ہوگی؟ ساری پرانے عہد نامے کی عہد عتیق ڈسکس کیا گیا ہوگا. پیدائش موسیٰ کی کتب کی بات کریں, تورا کی بات کریں تو 5 کتابیں, پیدائش, خروج, احبار, گنتی, استثنا, ان سب کتابوں کو لیتے ہوئے مسیح یسوع نے ہر ایک ذکر کیا ہوگا کہاں کہاں پر مسیح یسوع کے بارے میں پیش گوئی ہے. اور نبیوں کے صحائف تک, ملاکی تک مسیح یسوع نے ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں. مسیح یسوع نے ان کو سکھایا, مسیح یسوع نے ان کو بتایا کہاں کہاں مسیح یسوع کا ذکر ہے, کہاں کہاں ان پیشن گوئیوں کا ذکر ہے. اب لکھا ہے کہ وہ یروشلم سے ایماؤس کی جانب جا رہے تھے, اور لکھا ہے تقریباً 7 میل کا سفر ہے. اگر 7 میل کا سفر ہے تو پیدل تقریباً 2 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے, اور اگر وہ بہت سلو جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 3 گھنٹوں میں ہوا ہو.
अब मसीह यीशु उनको तालीम दे रहे हैं, मसीह यीशु उनको समझा रहे हैं। अब ये 3 घंटे का एक बाइबल स्टडी सेशन था क्लियोपास उसके दोस्त के साथ मसीह यीशु का, और अगर उसकी रिकॉर्डिंग हुई होती तो मैं समझती हूँ दुनिया की बेहतरीन तफसीर होती पुराने अहद में। अब मसीह यीशु, हालेलुया, अब मसीह यीशु उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, ये 2.5 से 3 घंटे का सफर है, वो बातचीत करते जा रहे हैं। मसीह यीशु उनको हर एक किताब में बता रहे हैं। 300 से ज्यादा पेशेंट गोइयां हैं जो पुराने अहदनामे में मसीह यीशु के बारे में है। और मसीह यीशु ऑब्वियसली ये तो नहीं कहते कि देखो ये मेरे बारे में लिखा है, क्योंकि अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली थी। अभी मसीह यीशु सिर्फ कलाम मुकद्दस में से उनको अपनी पेश गोइयों के बारे में बताते हैं। तो मसीह यीशु कहते होंगे देखो पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में यीशु के बारे में लिखा है, ये देखो यहाँ पे यीशु के बारे में लिखा है, ये यीशु के मरने के बारे में लिखा है, ये यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में लिखा है, ये उसके जी उठने के बारे में लिखा है, ये उसकी बादशाहत, उसकी दूसरी आमद के बारे में लिखा है। और वो सारी बातें मसीह यीशु ने उनके साथ की होंगी, उनके साथ डिस्कस की होंगी, उनको समझाई होंगी। 300 से ज्यादा पेश गोइयां मसीह यीशु ने उनके साथ सारी डिटेल में उनको बताई होंगी। सदियों पहले मसीह यीशु की पैदाइश की पेशन गोई हुई, मसीह यीशु की जिंदगी की पेशन गोई हुई, मसीह यीशु के दुखों की पेशगोई की गई, मसीह यीशु के मसलूब होने की पेशगोई की गई, मसीह यीशु के मरने की और जी उठने की सारी पेशन गोइयां, इवन मसीह यीशु के दोबारा आने की पेशन गोइयां भी हमें मिलती हैं पुराने अहदनामे में। अब मसीह यीशु जब उनको बयान करते हैं, जहां जहां मसीह यीशु के लहू का जिक्र है, जहां जहां मसीह यीशु की मौत का जिक्र है, याद रखें वहां वहां पर मसीह यीशु की बादशाहत का जिक्र भी है। जहां कहीं आप बाइबल मुकद्दस में एक लाल डोरी नजर आती है जो मसीह यीशु की सलीब को बयान करती है, याद रखिएगा उसके साथ साथ ही आपको एक सुनहरी डोरी भी नजर आएगी जो मसीह यीशु की बादशाहत को बयान करती है कि मसीह यीशु अपनी बादशाहत भी कायम करेगा। और मसीह यीशु पूरी दुनिया की तारीख का वाहिद ऐसा शख्स है जिसके अबावजात सदियों पहले बताए गए, जिसकी पैदाइश सदियों पहले बताई गई, जिसकी पैदाइश का तरीका सदियों पहले बताया गया। मसीह यीशु के खानदान, मसीह यीशु का बचपन, मसीह यीशु की जवानी, खिदमत, ठुकराया जाना, कबूल किया जाना, दुख उठाना, मसलूब होना, मर जाना, जी उठना, ये सब कुछ आपको पेशन गोइयों में मिलता है। और मैंने कहा इंसानी तारीख में यीशु वाहिद वो शख्सियत है जिसके बारे में इतनी पेशन गोइयां पहले से मौजूद है। पुराने अहदनामे के 25 राइटर्स जिन्होंने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई और मुकम्मल एक यीशु की तस्वीर को पेश करती है। एक बड़े अजीम साइंसदान पीटर स्टोन, उन्होंने एक किताब लिखी साइंस स्पीक्स। तकरीबन 18वीं सदी के आखिर से 19वीं सदी के आगाज तक पीटर स्टोनर उनका नाम है, उन्होंने एक किताब लिखी साइंस स्पीक्स। अगर गूगल पे आपको कभी टाइम मिले आप जरूर उनकी बुक्स के कुछ पेजेस आपको मिल जाएंगे, उनको स्टडी करिएगा। उसमें उन्होंने साबित किया है कि मसीह यीशु खुदा है। उन्होंने क्या साबित किया है कि मसीह यीशु क्या है, खुदा है। अब उन्होंने 600 स्टूडेंट्स अपने साथ लिए अपनी यूनिवर्सिटी के, और उन 600 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर दुनिया की तारीख में जितने महान इंसान, बड़े इंसान, अजीम इंसान रहे, उन सब की जिंदगियों को स्टडी किया और उनकी जिंदगियों से पहले होने वाली बातों को भी स्टडी किया। और फिर उन्होंने साइंस का एक कानून है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, उस कानून का इस्तेमाल किया। जैसे हमारी साइंस में बहुत से कानून है कि ये कानून है साइंस का या कुदरत का, आप कह लें कि हम कोई भी चीज फेंकेंगे या छोड़ेंगे तो वो कहाँ जाएगी, जमीन पर गिरेगी। लॉ ऑफ ग्रेविटी है। फिर एक्शन और रिएक्शन का कानून है, आप बॉल को दीवार पर मारेंगे बॉल वापस आएगी, क्योंकि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ऐसे ही कुदरत के बहुत सारे कानून हैं, उनमें से एक कानून ये भी है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में वो बयान करते हैं कि इस कानून में ये चीज स्टडी की जाती है कि किसी काम के, किसी चीज के या किसी वाक़े के होने के चांसेस कितने हैं। अब वो कहते हैं कि मसीह यीशु खुदा है, और उसको वो कैसे साबित करते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में 8 पेशगोइयां की गई हों या उनके बारे में कुछ 8 बातें कही गई हों कि इनकी जिंदगी में ठीक इस वक्त पर होंगी, ये पूरी होने के कितने चांसेस हैं। पीटर स्टोनर ने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बताया कि इसके कोई चांसेस नहीं है कि किसी शख्स के बारे में 8 पेशगोइयां भी की जाए तो उनके पूरे होने के कोई चांसेस नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, उन्होंने टेक्सास शहर का कहा, तो मैं आसानी के लिए कहूँगी हम अपने लाहौर शहर में करते हैं कि लाहौर शहर में अगर 2 फुट की ऊंचाई तक सिल्वर कलर के सिक्के बिखेर दिए जाए,
सिल्वर कलर के सिक्के पूरे लाहौर शहर में सड़कों में गलियों में बाजारों में बखेर दिए जाए 2 फुट की हाइट तक, और फिर एक गोल्डन कलर का सिक्का उसमें कहीं भी फेंक दिया जाए, या हिस्से में फेंक दिया जाए, या थोड़ा सा आगे करके कहीं भी फेंक दिया जाए। सारे सिल्वर सिक्कों में एक सिक्का कौन सा फेंकना है? गोल्डन कलर का। और फिर या तो आप एक अंधा आदमी ले, या अगर वो देखता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें ताकि वो देख ना सके, और उसे लाहौर शहर में छोड़ दें कि वो गोल्डन सिक्का ढूंढे। तो आप मुझे बताइए कितने चांसेस हैं कि वो गोल्डन सिक्का ढूंढ लेगा? क्योंकि वो देख नहीं सकता, अगर उसके हाथ लग भी जाए तो वो उसे नहीं पता चलेगा। तो कितने चांसेस हैं? इम्पॉसिबल, 0 चांसेस है कि कंधा आदमी लाहौर शहर में बिखरे हुए सिल्वर सिक्कों में से एक गोल्डन सिक्का ढूंढ सकता। तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह नामुमकिन है कि किसी शख्स के बारे में, किसी इंसान के बारे में 8 भी पेशन गोइयां की हो और उन 8 में वो 8 पूरी हो जाए, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और फिर वो कहते हैं मसीह यीशु के बारे में 8 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 नहीं, 250 नहीं, 300 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं जो ठीक अपने वक्त पर पूरी हुई हैं, जो इस बात का सबूत है कि मसीह यीशु कामिल इंसान ही नहीं, मसीह यीशु कामिल खुदा भी है। उन्होंने साइंटिफिकली ये साबित किया कि मसीह यीशु क्या है? खुदा है। सो मैंने कहा हमें पेशन गोइयों का जिक्र कहाँ से मिलता है? कलाम 10 में से। सो बाइबल इज द रोड मैप टू क्राइस्ट। बाइबल हमें मसीह यीशु तक पहुंचाती है। इसीलिए तो मसीह यीशु ने सारी पेशगोइयों का जिक्र यहाँ से करके उनके जहनों को खोला, उन्हें समझाया, उनकी मायूसी को दूर किया, उनकी फिक्रों को दूर किया, उनके दिल में जो गलत फहमियां थी उनको किसकी मदद से दूर किया? कलाम मुकद्दस की मदद से। याद रखिएगा आज भी ईमानदारों हमारी जिंदगी में मायूसी की वजह, फिक्र की वजह, परेशानी की वजह यह है क्योंकि हम बहुत सी बातों में कलाम मुकद्दस से मुनासिब तौर पर वाकिफ नहीं है। कलाम मुकद्दस हमारी बहुत सी गलत फहमियां दूर करता है। कलाम मुकद्दस हमारी मायूसियों को हमसे दूर करता है। और मसीह यीशु तक रसाई करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? कलाम मुकद्दस की। बाइबल मुकद्दस हमें मसीह यीशु के बारे में प्रॉपर डिटेल प्रिसाइज मालूमात देती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे सिस्टर साइमा को कॉल करनी है, मुझे उनका नंबर नहीं आता, लेकिन मैं आंखें बंद करके कोई भी नंबर मिलाऊंगी तो उनका नंबर मिल जाएगा? नो चांस, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एग्जैक्ट नंबर उन्हीं को मिले जिनसे मैं कॉल करना चाहती हूँ। मेरे पास डिटेल होना जरूरी है, पाकिस्तान का कोड होना जरूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, फिर ही मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। अगर आप मसीह यीशु को रसाई करना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस की प्रिसाइज मालूमात, बेहतर और जो बड़ी मुनासिब मालूमात है हमारे पास, वो होना जरूरी है। सो बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि मसीह यीशु जो है, हमारा मुनज्जी जो है, वो एक औरत से पैदा होता है। फिर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो पैदाइश 12वें बाब में लिखा है कि वो अब्राहम की नस्ल से होगा। अब्राहम की नस्ल में से तो 12 कबीले हैं, 12 कबीलों में से यहूदा का कबीला होगा। यहूदा के कबीले में बहुत से खानदान हैं, यस्सी का खानदान होगा। यस्सी के खानदान में बहुत सी औरतें हैं। वो औरत जो कवारी है, वो कौन सी कवारी है? क्योंकि यस्सी के खानदान में बहुत सी कवारियां हैं। वो कवारी जो बैतलहम में है। और बैतलहम की कौन सी कवारी? कब उससे बेटा पैदा होगा? दानियल 9वें बाब की तमाम पेशनगोई के एग्जैक्ट मुताबिक मसीह यीशु बैतलहम में पैदा होते हैं। So this is the Bible जो हमें मसीह यीशु तक रसाई देती है। ईमानदारों, आज हम किसी भी परेशानी, फिक्र, मायूसी में हैं तो याद रखिएगा महज ये बाइबल है जो हमें मसीह यीशु तक पहुंचा सकती है। आज हमारी जिंदगी में मसीह यीशु को अगर कोई हकीकत बना सकती है तो वो क्या है? यही बाइबल मुकद्दस है। और जब मसीह यीशु ने कलाम मुकद्दस में से उनके साथ बातें की, वो जोश से भर गए। और जब मसीह यीशु ने उनसे दूर जाना चाहा, मसीह यीशु वहां से मूव होना चाहते थे, आप जानते हैं क्या लिखा है? उन्होंने मसीह यीशु को रोक लिया। उन्होंने कहा पहली बार शाम हो गई है, दूसरा अभी आप ना जाएं। मसीह यीशु रुक गया। याद रखिएगा जब कलाम मुकद्दस के जरिए से खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है तो वो चाहता है कि हम उससे निपटने का अहद करें, हम उसके साथ रहने का अहद करें। याकूब ने उस फरिश्ते को पकड़ लिया, कहा मैं तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। यीशु ने उस औरत से कहा बेटों की रोटी कुत्तों को डालना रवा नहीं। आप जानते हो उस औरत ने क्या कहा? उसने कहा कुत्ते भी तो मेज से गिरे टुकड़े खाते हैं। यीशु ने कहा मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। सो यीशु चाहता है कि जब हम यीशु को जान जाए कलाम मुकद्दस की रोशनी में तो फिर उसे लिपटे रहे।
اب جب مسیح یسوع نے روٹی توڑی، انہوں نے پہچان لیا تو یسوع مسیح وہاں سے غائب ہو گئے. تو پھر کیا وہ وہیں پہ رہ گئے؟ فوراً واپس گئے. اب شام تھی، اندھیرا تھا. یسوع کو بتا رہے ہیں کہ اندھیرا آپ رک جائیں، اور خود لکھا ہے اسی وقت اسی گھڑی واپس یروشلم گئے. جب آپ مسیح یسوع کو جان جائیں، جب یہ کلام مقدس آپ کو مسیح یسوع تک پہنچا دیں، then come into action. پھر رک نہ جائیں، پھر وفاداری کا سفر شروع کریں، فرما برداری کا سفر شروع کریں، کلام مقدس کو اور سمجھنے سیکھنے کا سفر شروع کریں، تاکہ آپ مسیح یسوع کی رسائی میں دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکیں. خداوند آج کے پاک کلام کو